Welcome viewers. Today I am again discussing the multiplication of two numbers. You know the beauty of 9? 9 is called a complete number according to the Hindu mythology. Suppose table of 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18 and 1 plus 8 is again 9. 9 threes are 27, 2 plus 7 is 9. 9 fives are 45, 4 plus 5 is again 9. That's why it is called the complete number. And भगवान राम जी का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था और इसीलिए उनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान. ही इज अ कंप्लीट मैन. So this is about the 9. Now today I will give you a technique for multiplication of numbers, two numbers obviously. So maybe number again, this method utilizes the concept of base, right? So there are cases like say 12 cross 30. The base for both number is same, that is 10, and both numbers are greater than, or we can say above the base, or we can say 1 1 2 cross 1 1 3. In this case base is 100 and both numbers are of the same base and also both numbers are above the base, right? तो ये एक केस हो गया कि both the numbers are above the base. Second number possibility is 8 cross 9 or 97 cross 98. Base 10, base 100, and both numbers in both the examples are below the base, below the 10, below the 100, similarly below the 1000, etc. And third case is like that 98 cross 105. That is, in this example, one number is below the base and other number is above the base. So today I will give you a method for case 1, multiplication of numbers above the base. Multiplication of numbers above the, this is the case 1, right? So start with the simplest example, that is with base 10. Now suppose the first example is for base 10. Now suppose example is say 12 cross 30, where both the numbers are above the base, right? Now right here कि base से ये दोनों नंबर कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा बेस से हैं. ओके, 10 से ये 2 ज्यादा है, राइट, प्लस 2, दिस इज प्लस 3. 2 and 3 are the numbers which indicates how much 12 is greater than 10. 2 का डिफरेंस है, प्लस 2 प्लस 3. ओके, अब क्या करना है, आपको ऐसे एरो बना देना है, क्रॉस वाइज एरो. ओके, क्रॉस वाइज एरो बना देना है. क्रॉस वाइज एरो में आपको सेम वही लॉजिक लगाना है. ड्रॉ द वर्टिकल लाइन in the answer. Vertical line shows right side and left side of the answer. Okay, right side of the answer 2 cross 3 6. This is the right side of the answer. Left side में क्या करना है, क्रॉस को यूज करना है. 12 plus 3 करिए और 13 plus 2, दोनों में से कोई एक करिए, आंसर रिमेन सेम, that is 1 5. Remove this line, you will get the answer
156. Okay. Now see the second example. Say 14 cross 11. Okay. 14 cross 11 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बेस 10 पे है दोनों नंबर्स। 10 से कितना ज्यादा है 4, ये कितना ज्यादा है 1। ओके, राइट साइड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। लेफ्ट साइड के लिए इसको प्लस करेंगे, 14 प्लस 1 करिए या 11 प्लस 4 करिए, दोनों में से कोई है, तो दिस कम्स आउट टू बी 1। कौन सा मेथड आसान है, ये वाला या स्कूल वाला? स्कूल वाला करते तो आप 1 से पहले करते, फिर 1 से करते, फिर मतलब आपका आंसर थर्ड स्टेप में आता है। और अभी आपका आंसर कैसे आ रहा है, फर्स्ट स्टेप में आपको एक सिंगल लाइन में आंसर आ जा रहा है। नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल, से 15 क्रॉस 17। ओके, 15 क्रॉस 17, ये कितना ज्यादा है 5, both are on the base 10, 10 पे ये 7। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे राइट साइड में 5 7 जा, ध्यान से देखिएगा, 5 7 जा, मैंने क्यों 3 को थोड़ा नीचे लिखा है, आई एक्सप्लेन। नाउ 15 प्लस 7 और 17 प्लस 5, 15 प्लस 7 और 17 प्लस 5, क्रॉस एडिशन, this comes out to be 22. Here base is 10. Base 10 indicates right side of the answer contains as many digits, as many zeros in the base. Base 10 में केवल एक जीरो है, इसलिए राइट साइड के आंसर में केवल एक डिजिट आएगा। तो जो ये 35 आ रहा है, इसको हम 10th प्लेस के नंबर को कैरी फॉरवर्ड इधर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 22 प्लस 3 2 5 5। Always remember that right side of the answer contains as many number of digits, as many zeros present in the base. यदि आपका इस एग्जाम्पल में 10 बेस है और नंबर डबल डिजिट पे राइट साइड आ रहा है, तो 1st प्लेस के नंबर को आप लिखिए और 10th प्लेस के नंबर को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए टू द नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट। ओके, नाउ कंसीडर another example, say 19 cross 14. Okay, this is plus 9 and this is plus 4, more than base 10, 9 and 5. ठीक है, 9 4s are 36, 19 plus 4 23, डबल डिजिट में आंसर था, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 3 थोड़ा सा नीचे, एंड दिस 3 एडेड टू द नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट, दैट इज 266 इज द आंसर। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। नाउ कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ बेस 10, से 105 क्रॉस 105। Yes, 100 पे 105 क्रॉस 105, इसको आप पहले वाले चैप्टर से भी कर सकते हैं, जिसमें आपने देखा कि यूनिट प्लेस का नंबर्स का सम 10 था और रिमेनिंग आपका 10 था, दैट इज लेसन 3। बट अभी आपको लेसन 3 तो आता है, अच्छी बात है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर हाउ टू अप्लाई the method which is above the base. So you see कि both the numbers are nearer to 100 base. ठीक है, तो कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है और ये भी 5 ज्यादा है, right? So right side of the answer is 5 into 5 25 and
and left side of the answer is 105 plus 5, that is 110. So answer is 11025, right? Now suppose दूसरा क्वेश्चन एक दे देते हैं, 113 क्रॉस 119. 113 cross 119. Okay. 113 cross 190. Both are again near to base 100. This is plus 13 and this is plus 19. अब आप देखिए यहाँ पे 13 राइट साइड का आंसर कैसे निकलेगा? 13 क्रॉस 19. That means this question involves 2 steps for right side of the answer. 2 step कैसे? यहाँ पे राइट साइड में आपको 13 क्रॉस 19 करना है. ओके, तो आप यहाँ पे कर लो 13 क्रॉस 19. These two numbers are above the base 10. So this is plus 3 and this is plus 9. 9 3s are 27, right? और 19 plus 3 are 13 plus 9. This is 22. Okay. Since this 13 cross 19 is of base 10, so right side contains only 1 digit. So we add this 2 here. This comes out to be 2, 4, 7. So answer of 13 cross 19 is 2, 4, 7. Since this is base 100 question, so right side contains only 2 digits. So we write 2 below here. Okay. Now 113, 113 plus 19 कीजिए और 119 plus 13 कीजिए. आप कुछ भी कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा? 113 plus 19, 132. ओके, इस 2 को इधर ऐड कर लीजिए. तो क्या आएगा? 134, 4, 7 is the answer. So this question involves 2 steps. So आप लोग 2 स्टेप यदि हमें करना पड़ जाए, मे बी कि 3 स्टेप भी, डिपेंड्स कि हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा है. तो यदि आपको टाइम लग रहा है 2 स्टेप या 3 स्टेप में, तो वैदिक मैथ्स बेकार है. इसका मतलब इसके लिए कोई दूसरी टेक्निक है, विच वी डिस्कस लेटर ऑन. दूसरे चैप्टर में वो टेक्निक आएगी, जहाँ पे आपका लेसन 10 या 11 में होगा. आपको वो टेक्निक वहाँ बताई जाएगी कि कैसे इन नंबर्स को आप एक सिंगल लाइन में करेंगे. ठीक है ना? नाउ टेक अनदर एग्जांपल, से 101 क्रॉस 102. दिस इज अगेन विद द बेस 100. 101 क्रॉस 102. बोथ नंबर्स आर अबव द बेस. दिस इज +1, दिस इज +2. अब यहाँ पे देखने की बात है, 2 1s are 2 and 101 plus 2 is 103. मैंने बताया राइट साइड ऑफ द आंसर कंटेन्स एज मेनी नंबर ऑफ डिजिट एज zeros present in the base. मीन्स यहाँ पे बेस 100 है और 100 में 2 0 है. 2 0 का मतलब राइट साइड में भी 2 डिजिट आने चाहिए. यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, 220 बन जाएगा. और 0 बिफोर द 2, 2 डिजिट हो गए. तो आंसर इज 10302. तो जब भी एक एक्स्ट्रा डिजिट आए तो उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डिजिट में कर देना है, और यदि कम आता है तो उसमें नंबर के पहले, दैट मीन्स वर्टिकल लाइन के जस्ट बाद राइट साइड में आपको 0 ऐड कर देना है. एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, और वो बेस 1000 का है. बेस 1000, 1010.
राइट, ये है 10 मल्टीप्लाइड बाई 1002, बोथ आर ऑन द बेस 1000। ये कितना ज्यादा है +10, ये कितना ज्यादा है +2। तो राइट साइड 10 2 20 और लेफ्ट साइड क्या होगा 1012। ये करिए और ये करिए 3 zeros, so right side contains 3 digits, so put 0 here. Answer is 10122020. So this is the method. So this method is applicable only when both the numbers are above the base. Otherwise this method fails. So remember that जब दोनों नंबर आपके बेस से बड़े हों तब ये मेथड अप्लाई करना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि राइट साइड में उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने की बेस में जीरोस हैं। ओके, नाउ सपोज आपको 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट करना है। सपोज कोई क्वेश्चन है जैसे 13 क्रॉस, सपोज आपको करना है 13 क्रॉस से 102। तो यहाँ पे क्या है, बेस आपका 10 है, दिस इज बेस, और यहाँ पे बेस आपका 100 है। तब आप क्या करोगे, बताओ? कुछ नहीं करोगे, सिंपल 13 को बना दो 130, दोनों सेम बेस पे आ गए। कैलकुलेट करने के बाद जो 0 लास्ट में आएगा उस 0 को रिमूव कर गेट द आंसर। तो 2 डिजिट को 3 डिजिट बनाना है बाय पुटिंग 0 एंड फाइनल आंसर में उस 0 को रिमूव कर लीजिए। तो दिस इज द मेथड एंड रिमूव, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो I will tell the technique when both the numbers are below the base. Okay, thank you. Stay tuned.